नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चांदी का खेल सोना फेल। यानी चांदी की तेजी के आगे अब सोना पीछे दिख रहा है। ऐसे में लोगों के मन में चांदी को लेकर तमाम तरह के सवाल होंगे। इस रैली में चांदी कहां तक जाएगी, डिमांड और सप्लाई को लेकर क्या रिपोर्ट है, आज इस खास पेशकश में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं चांदी का जोर और फिर सोना क्या होगा फेल। शुरुआत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं, सिल्वर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट माइकल डी रिएंजो हमारे साथ मौजूद है। वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे we have Mr. Michael Di Rienzo. He is the president and CEO of the Silver Institute. It's great to have you in our show, Mr. Michael, and thank you for taking your time out. And I'm very excited to have you in our show. As the president of the Silver Institute, you play a vital role in shaping the perception and future of the silver market. And silver is very important metal. How would you describe the current state of the silver market and how have you seen the dynamics and fundamentals of silver has changed? Well, first of all, thank you so much for the opportunity to be on your great show this morning. Look at we're a marketer for silver, the Silver Institute. We just a little background on us. We're over 50 years old. Our members are mining companies, refiners, end users of silver, transporters of silver. And what we do is we come up with an agenda, a marketing plan to get the word of silver to as many people as possible throughout the year. And we do that through the reports we release, through the various programs we engage in, and conference attendance and so forth. But what we really are is we're marketers for silver, and we think we've been very successful over the years. Now, getting to today's market, I think it's looking good. I mean, the price is above $30. We have just put out our World Silver Survey last month, and that survey essentially indicates that we're in the fourth this year, a year of market deficits. We forecast another increase in industrial demand this year to reach yet another record of over 700 million ounces. And we think that the investment flows into all forms of silver investment are starting to pick up, clearly, as you can see by the price. But if you look at the top ETFs, for example, the top 5 were up 20% on the year. And this is really good news for the silver market. So, we're calling for yet another deficit this year, and that it bodes well for the silver market globally. Deficit here could be seen in 2024. Michael, my next question would be related to the industrial demand. Silver is known for its industrial application. We all know more than 50% silver used in industries. What are some of the most exciting or significant development in this area in industry side? Well, that's a great question, and you're right. This year, I think, or in 2023, I should say, we had about 54% of global silver demand go to industrial applications. And years past, photography was the number one use of silver, but it's not even top 5 now. Very small amount of silver goes into photography. What has really taken fold is the electrification of the world, the desire to have a greener economy and a low carbon economy. And silver plays a very important role in those global efforts. So, for example, photovoltaics. We called for over 193 million ounces of silver last year going into this application, and we think it's going to rise further to well over 200 million ounces this year. Silver is a very integral part of the solar panel itself. There are various forms of solar panels. Some use double-sided silver paste and powders. Some use just a thin layer of silver. But the fact of the matter is that silver will always play a role in this application for many reasons. First, it's the best thermal conductor of electricity. It can withstand extreme temperatures, either indoors or outdoors.
And quite frankly, if you try to put another product on there, it doesn't have the longevity. I should say another metal doesn't have the longevity. Look at when these manufacturers are putting these solar installations together, they want a 15 to 20-year lifespan, and they get that guarantee with silver. So it's not just solar panels and photovoltaics, but it's also the electrification of vehicles. And it's not just the electric vehicle, but it's the hybrid vehicle as well. Okay. Now, silver is not used in those car batteries, but what it is used for, it's used extensively within the vehicle in the electrical contacts. And Okay. as these vehicles become more complex with their technology, more silver will be required. Okay, okay. So you elaborated all the demand from different segments, different sectors, different industries. So how do you see the technological advancements impacting the demand for silver? Are there any emerging technology or sectors that could significantly drive silver demand? Well, I mean, I've already spoke to two, vehicles and so forth, and photovoltaics, but it's not just that. Silver plays a smaller role in wind power and nuclear power as well. And you remember just a few years ago, we had the issue of very high gas prices, at least here in the United States. And there was an effort, or at least a discussion underway about nuclear power. Now, silver is not integral to the powering of these nuclear plants, but again, as more electrical contacts are required, more silver will be used. Look at everything you have, from a cell phone to a computer to your car to the lights in your home and your office. If it has an on and off switch, 99% of those applications contain silver. Okay? So silver is the key to electrification. It is the key to power grids. It is the key to the future. Okay, okay. And my next question would be related to the deficit. As you talked about the deficit, if there is a deficit situation in the silver market, what are the miners doing to pull back production to their healthier levels to meet future demand? Well, I can't speak on behalf of each individual mining company, but on the whole, these miners are faced with higher inflation, higher costs, cash costs to operate their operating mines. But nonetheless, they are meeting this demand. Okay, we're calling for just a very small decrease in silver mine supply this year. We're also calling for a smaller or another decrease in scrap silver, recycled silver coming to the market. So when you combine the lower mine production coming to the market with increased demand, you end up in a deficit situation. What people need to understand, though, is there is at this point today enough above ground stocks of silver to meet that demand. And the question is, at what price point do those stocks get mobilized in order to meet this demand? But as of today, there's more than enough silver above ground. But if big investment flows come into silver and that silver is needed for an ETP, exchange traded product, or another source of investment demand, it could get tricky down the road. Okay. One more question that everyone would like to know from you. What is your outlook for silver prices over the next 2 to 3 years, and what factors will be the most influential, and what will be the driving factor for silver prices? Because we have already seen silver prices are making new high in Indian market, but in international market is still far away from the record high. Yeah, so we don't like to make price predictions here. We like to speak to the fundamentals of the market. But I can tell you this, this year, just taking this year, for example, most analysts, most people do anticipate 1 or 2 U.S. Fed rate cuts, which will be good for the silver price. It makes alternative investments like silver, hard assets like silver and gold,
more people get more excited by those products because of the lower interest rates, and it's a place to put their money. I spoke to the deficit this year. We think there's going to be a deficit this year and ongoing. Increased industrial demand. And the other thing, too, is rising geopolitical tensions. The world is facing many issues overseas. And let's not forget, we have more elections to take place this year across the globe, including one in your country, which is ongoing right now. So, look, there are a lot of factors. I think the silver price is very strong. I think it has a lot of room to run, though. Okay. I think this price right now is there's a lot more opportunity to the upside. So that's what we feel. We're comfortable at where it is now, but we think it's going to go further. Okay. So there is still room to go up from here. So it's very interesting. One more question related to, do you see institutional money such as pension funds, they are coming into the physical sector as part of portfolio balancing play? It's a great question. And to speak to that specifically, the answer is yes. And I just want to know your listeners and viewers to know that in just a few months, perhaps the end of June, or early July, we'll be putting out a report on why institutional investors should take a very hard look at silver, okay? So it's going to address all the complexities of investment in silver. When I say complexities, all the opportunities, I should say, to invest in silver, whether that be bullion form, mining company stock, whether that also be ETFs, ETPs, and so forth. And we're going to make a strong argument that more institutional investment should be headed towards silver. Okay. And Michael, I have a very interesting question for you, because we have the larger audience, they reside in rural India, and they all want to know from you, what advice would you give someone they are looking to start investing in silver? Well, we just got back from silver. I'm from India. We were in Goa just last month for the second India Silver Conference. And I had an opportunity to speak to a lot of the delegates at that conference about silver investment. Silver investment in India is strong. It had a really, really banner year in 2022. It set records with respect to investment. And it kind of backed off a little bit because of the record year in 2022 last year. But we're seeing a lot of inflows into India with respect to bullion stocks, imports, and so forth. But for the average investor, for somebody who's just starting out, or for those with a sophisticated portfolio, I think the best way to get in is to own the physical silver, to buy the bars, to buy the coins. And I know that in just recent years, you now have the opportunity to engage in exchange-traded products, which is quite exciting. Digital silver in India is starting to take off. So there are many opportunities. So there are many opportunities for all retail investors. Thank you, Michael, for taking your time out for us. And we will keep interviewing you in future also. Thanks, Michael, for taking your time out for 18 hours for this. Thank you so much, and please call me anytime. I look forward to it. I look forward to coming back to the great country of India. थैंक यू सो मच सर। तो ये थे माइकल डी रिएंजो, जो सिल्वर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट थे। उनको लगता है कि जिस तरह की डेफिसिट है, लगातार 3 सालों से डेफिसिट है और इस साल भी डेफिसिट की स्थिति है। इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार 3 सालों से रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बार भी रिकॉर्ड डिमांड की संभावना और आगे भी ये रिकॉर्ड डिमांड बनी रहने की संभावना है। तो तमाम फैक्टर है जो सिल्वर के प्राइस को यहाँ से सपोर्ट करने वाले हैं। एक बात उन्होंने ये भी कहा, जो नए निवेशक है चांदी में जो निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में। सिल्वर अगर वो रूरल इंडिया में रह रहे हैं तो फिजिकल सिल्वर से भी शुरुआत कर सकते हैं, बार और कॉइन से शुरुआत कर सकते हैं। फिर डिजिटली अगर वो निवेश कर पाते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, तो डिजिटली भी चांदी खरीद सकते हैं। अदरवाइज सिल्वर ETF का भी विकल्प आपके पास है। तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह की तेज़ी आई है, क्या करंट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सवाल भी उठता है।
हालांकि उन्होंने ज़रूर कहा कि ये लंबी अवधि में तेज़ी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ के घरेलू बाजार के हिसाब से समझने के लिए हमारे साथ मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से। मानव, एक सवाल आपसे लूँगा, उसके बाद मुझे ब्रेक पर भी जाना है, छोटा जवाब दीजिएगा। आप सिल्वर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट और सीईओ को सुन रहे थे, क्या लग रहा है इनके सुनने के बाद, डिमांड सप्लाई के सिनेरियो को सुनने के बाद, किस तरह की चाल चांदी की रहेगी और इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जैसे माइकल सर ने भी फंडामेंटल्स की बहुत अच्छे से बात की कि बहुत सारे फैक्टर्स है, डेफिसिट है, इंडस्ट्रियल डिमांड सबसे ज़्यादा इस साल में देखी गई है, तो ईटीएफ्स में भी पैसे आने की संभावना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। प्राइस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो पिछले महीने ही हमने ऑलमोस्ट 7 to 8% का रिटर्न आता हुआ देखा है, जो अगर हम इंडिया के एफडी रेट से भी कंपेयर करेंगे तो पूरे साल का है चांदी में हमें 1 महीने में देखने मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा बैठे हैं चांदी में। हम 1 साल के करीब 1 लाख का टारगेट देख रहे थे, हम ऑलरेडी 4 महीने इन है और हम 95,000 के करीब आ चुके हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बिल्कुल कोई भी निवेशक को करनी चाहिए। अगर शुरुआती निवेशक है तो ईटीएफ या फिर फिजिकल से शुरू करके हमारे पास एमसीएक्स पे भी जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है उस पे शुरू कर सकते हैं। से भी शुरू कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे डिलीवरी का भी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन चलिए, वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद सिल्वर के साथ साथ गोल्ड की भी बातचीत करेंगे, दोनों में कौन बेहतर है ये भी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, चांदी का खेल सोना फेल। क्या लेकिन चांदी और सोना, मानव आपसे अब मेरा अगला सवाल होगा, आपको क्या पसंद है और आगे कौन बाजी मारेगा, कौन किसमें ज़्यादा दम दिख रहा है? क्योंकि चांदी ने जिस तरह से आउट परफॉर्म किया है सोने को, अगर इस साल 2024 का आप रिटर्न देखिए तो शानदार रिटर्न चांदी ने दिया है। पहले सोने की चाल तेज़ी से बढ़ी, सोना नया रिकॉर्ड बनाया, फिर चांदी तो लगातार नया रिकॉर्ड बना रही है। आपको क्या पसंद है, यहाँ से क्या एडवाइस दे रहे हैं, गोल्ड या सिल्वर? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपने बहुत सही कहा कि शुरुआत के महीनों में गोल्ड ने तेजी पकड़ी थी, चांदी साइडवेज था। अब चांदी ने बहुत बढ़िया तेजी पकड़ी है, गोल्ड थोड़ा बहुत साइडवेज हो गया है। हमने शुरू से ये स्टांस रखा है कि चांदी आउट परफॉर्म कर सकता है रिटर्न्स के मामले में, और वो हम आता हुआ देख रहे हैं पिछले 2 महीने से। मेरे ख्याल से चांदी का बेट थोड़ा और बेटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम और ज़्यादा है। 95,000 का हाई बन चुका है, हमारा एनुअल व्यू 1 लाख का है, तो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम और ज्यादा तेजी का बन सकता है। डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग बाय डिप्स आ सकती है, लेकिन वहां से निवेश फिर से किया जा सकता है। सोने में भी अगर बात करें तो ओवरऑल हमारा टारगेट 75,000 के करीब का है, 2450 का। हम करीब करीब उसके आसपास आके फिर से हम वहां पे एक डिप आती हुई देखते हैं। तो अगर 73 के ऊपर जब तक है, गोल्ड में हम बाय कर सकते हैं। सिमिलरली चांदी में 93 के ऊपर जब तक है हम बाय में रह सकते हैं। तो ओवरऑल बेट चांदी पे रहेगा कि गेन्स के रिटर्न्स के मामले में चांदी का आउट परफॉर्मेंस हमें बिल्कुल दिख सकता है। ओके, यानी चांदी का आउट परफॉर्मेंस आगे दिख सकता है। चलिए, हमने गोल्ड पर, हालांकि प्राइस पे उन्होंने बातचीत नहीं की थी। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हमारे साथ थे विक्रम धवन, उनसे हमने पूछा था कई सारे गोल्ड को लेकर सवाल। हालांकि प्राइस पे वो फंड मैनेजर है तो प्राइस पे तो बातचीत उन्होंने नहीं की, लेकिन पूरा आउटलुक समझा दिया, डिमांड सप्लाई का सिनेरियो समझा दिया। गोल्ड को लेकर उनका क्या व्यू है ये समझ लेते हैं। जो सबसे बड़ा अंडरलाइंग ट्रेंड है वो शायद इतना हेडलाइंस में नहीं है, वो ये है कि अगर आप सेंट्रल बैंक्स की डॉलर होल्डिंग देखें तो पिछले 20 साल में वो 12 से 13% कम हुई हैं। शायद आपको 20 साल में 12 से 13% बहुत कम लगेगा, लेकिन ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं। जैसे अगर आप चाइना की भी बात करें, चाइना ने पिछले 2-3 साल में 300-400 बिलियन डॉलर के डॉलर रिजर्व्स कम किए हैं। सब जो रिजर्व्स हैं वो गोल्ड में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक गोल्ड के लिए प्रेफरेंस शुरू हो गई है। तो ये एक अंडरलाइंग ट्रेंड है कि 25 साल पहले ये सोचा जाता था कि अगर आपकी एक कंट्री की बैलेंस शीट में रिजर्व बैंक, उसके सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में अगर गोल्ड है तो वो कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत मानी जाती थी। लेकिन अभी उल्टा हो गया है। अभी कहीं ना कहीं लोग, क्योंकि जो यूएस की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो जिस तरीके से वो आर्बिट्ररीली सैंक्शंस लगा रहे हैं, इससे काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी डर, काफ़ी
विडंबना है, चाहे उनके वो एलाइज हों या चाहे वो चाइना ब्लॉक के लोग हों। तो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिकली अगर आप कहें ग्लोबल साउथ जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जो डेवलपिंग कंट्री आती हैं, उनमें काफ़ी एंग्जाइटी है कि शायद वो नहीं चाहते हैं कि उनकी डॉलर होल्डिंग इतनी ज़्यादा हो कि कल को सैंक्शंस हों या कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो तो उनको उससे प्रॉब्लम आए। तो गोल्ड एक विकल्प होता है उनके लिए, क्योंकि गोल्ड में एक तो क्रेडिट रिस्क नहीं है, किसी कंट्री कोई उसको कंट्रोल नहीं करता, ओन नहीं करता, उसकी लिक्विडिटी है। गोल्ड शायद आपको नहीं मालूम होगा कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास सबसे वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड है। अगर आप सबसे लिक्विड इक्विटी इंडेक्स माने S&P 500 या ट्रेजरीज, उसके बाद गोल्ड का ही नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये अंडरलाइंग ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी या सिर्फ बार्स या कॉइन्स में नहीं रहेगा, इसका एक अलग विकल्प हो सकता है। लेकिन स्टिल अर्ली डेज, मैं इसके बारे में कोई फोरकास्ट नहीं करना चाहूँगा, बट ये अंडरलाइंग ट्रेंड जो है ये अगर कंटिन्यू करता है तो गोल्ड के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, मैं आपसे टारगेट नहीं पूछ सकता क्योंकि आप फंड मैनेज करते हैं, लेकिन एक क्या लग रहा है आपको कि किस तरह का रेंज आप देख रहे हैं? नीचे में परसेंटेज टर्म में बताए तो कितना नीचे आ सकता है गोल्ड, परसेंटेज टर्म में ऊपर इस साल का कितना ऊपर जा सकता है? परसेंटेज टर्म में अगर आप बता पाए तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, मैं परसेंटेज टर्म में तो शायद नहीं बता सकता हूँ एज पर द रेगुलेशन, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप देखिए, जैसे चाइना का केस देखिए, जो अभी चाइना की जो फिजिकल डिमांड है, जो प्राइस को ड्राइव कर रही है, वो क्यों ड्राइव कर रही है? क्योंकि जिसको हम कहते हैं रोटेशन शुरू हो गया है उनका, इक्विटी और रियल एस्टेट और फिक्स्ड जो रिस्क एसेट्स है उससे रोटेशन शुरू हो गया है। तो ये अभी एक मेजर इकोनॉमी है जहाँ से रोटेशन शुरू हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इक्विटी मार्केट्स का पीक हो गया है या होने वाला है, लेकिन जब भी साइकिल टर्न होगी, और मार्केट साइकिल इन्फाइनाइट तो नहीं जा सकती, जब भी मार्केट साइकिल टर्न होगी, इकोनॉमिक साइकिल टर्न होगी, जब रोटेशन शुरू होगा, तो आई थिंक एक गोल्ड में जो है काफ़ी फ्लोज आ सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। बट ये कब होगा ये कहना मुश्किल है। उस समय गोल्ड का एक लेग ऊपर होने के चांसेस काफ़ी हैं। ओके, विक्रम सर, अब आपसे मेरा एक और सवाल होगा गोल्ड ईटीएफ को लेके। गोल्ड ईटीएफ में उस तरह का ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, क्या लग रहा है, क्या वजह है कि बाकी तेजी तो आ रही है लेकिन गोल्ड ईटीएफ अभी भी क्यों दूर है उससे, लोगों के इन्वेस्टमेंट से? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, गोल्ड ईटीएफ में जो फ्लोज हमने देखे हैं पिछले कुछ साल में, वो ओवरऑल गोल्ड मार्केट के 2 से 3% ही हैं। इसका मतलब ये है कि 95 से 98% तक जो गोल्ड है वो फिजिकल फॉर्म में आ रहा है, और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड जो है कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि गोल्ड ईटीएफ की जो स्टोरी है वो ये इतना पुराना इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वो 100-150 साल पुराने हैं। गोल्ड ईटीएफ जो है अभी 20 साल पुराना भी वो नहीं है, और इंडिया में तो शायद 15-16 साल ही हुए हैं इसको। और दूसरी बात क्या है कि जैसे जैसे इन्वेस्टर्स को कैपिटल मार्केट में विश्वास आता जाएगा वेल्थ क्रिएशन के लिए, वैसे वैसे उनका गोल्ड ईटीएफ की तरफ रुझान होगा। तो मैं समझता हूं कि जो स्पेसिफिकली जो पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर के जो फ्लोज थे वो काफ़ी एनकरेजिंग थे। सो फार इस साल भी वाईटीडी जो फ्लोज हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग हैं। इंडस्ट्री वाइज इंडिया की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन, मल्टी एसेट थीम्स अगर प्ले आउट करेंगी तो ये गोल्ड के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, अब आखिरी सवाल, गोल्ड बॉन्ड वर्सेस गोल्ड ईटीएफ, क्या लग रहा है, कहाँ पे दिक्कतें हैं? गोल्ड बॉन्ड को लेकर आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? क्या आप लोग लग रहा है कि जो आरबीआई के लिए जो कॉस्टिंग का एक ट्रिगर है वो भी काफ़ी नुकसान भरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से गोल्ड में तेज़ी आ रही है और दूसरी तरफ से आप इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टिपिकली गोल्ड बॉन्ड्स वहाँ इशू किए जाते हैं जहाँ पे क्राइसिस हो या पैनिक हो। जैसे हमने टर्की में देखा, जब करेंसी क्राइसिस हुई तो गोल्ड बॉन्ड इशू किए गए। जब कोई भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की प्रॉब्लम होती है या करेंसी वोलेटिलिटी होती है, कैपिटल की प्रॉब्लम होती है, तो वो ये इस तरह के गोल्ड बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया के केस में आई थिंक एक वो चाहिए, एनालिसिस चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें गोल्ड का तो वो डबल डिजिट में है। अगर आप जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो 2% के आसपास है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक्चुअल कॉस्टिंग है वो जो आप जीसेक से कहीं ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि अगर इसको हेज करने के लिए आरबीआई फिजिकल गोल्ड खरीद रहा है एक साइड में, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो कि इस गोल्ड बॉन्ड के लिए बताया गया था वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेट होल्डिंग्स हैं इंडिया की, चाहे वो आरबीआई के पास हो या उसका हो सकता है वॉल्टिंग इंडिया में हो या ओवरसीज़ में हो, वो ऊपर जा रहा है। तो आई थिंक ये एक इसका जो रैशनल है, इसकी जो फिलॉसफी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गोल्ड बॉन्ड अभी छोटा नहीं रहा है, काफ़ी इसकी जो एज एन एसेट काफ़ी बढ़ चुका है, करीब करीब 1 लाख करोड़ का हो गया है। तो आई थिंक ये इस तरीके का एक सम सॉर्ट ऑफ अ क्लैरिफिकेशन इज़ नीडेड फॉर द इंडियंस। ओके, तो ये थे
विक्रम धवन जो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर थे। अब मानव आपसे मेरा जाते जाते छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, गोल्ड या सिल्वर करंट लेवल पर अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में अगर खरीदना हो तो आप क्या खरीदेंगे करंट लेवल पर? जी बिल्कुल, मैं तो बहुत लोगों को फोमो हो रहा है, बहुत लोग ये है कि रैली शायद छूट गई है। अब मेरे पोर्टफोलियो में अब तक ये मानना था कि गोल्ड का होना जरूरी है, एटलीस्ट 5 से 10% का चंक होना चाहिए। लेकिन अब सिल्वर के भी रिटर्न बहुत अच्छे हैं, जैसे हमने पहले भी बात की कि सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस भी दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर का एक बराबर मात्रा होनी जरूरी है, क्योंकि सिल्वर बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और गोल्ड बहुत ज्यादा शांत है। लेकिन ये सिनारियो अगर आप देखेंगे तो गोल्ड की अगर 10% रख रहे हैं तो 5% गोल्ड और 5% सिल्वर, और उसी तरह से, या फिर 6% गोल्ड और 4% सिल्वर, उस हिसाब से थोड़ा बाइफर्केशन करना चाहिए। लेकिन दोनों ही चीजें रखनी जरूरी है। गोल्ड की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं क्योंकि सेफ हेवन माना जाता है, शांत कमोडिटी है। सिल्वर थोड़ी वॉलेटाइल है, लेकिन मैं दोनों ही रखूंगा क्योंकि परफॉर्मेंस गेन्स और प्राइस मूवमेंट दोनों में ही काफी अच्छी है। शुक्रिया मानव। इसी नोट के साथ तो साफ है कि भले ही चांदी बहुत तेज रिटर्न देती हो लेकिन पोर्टफोलियो में स्थिरता भी चाहिए। वो स्थिरता आपको गोल्ड ही देता है। रखिए दोनों, लेकिन 50-50 आप रख सकते हैं। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते तो 60% गोल्ड 40% चांदी भी रख सकते हैं। और अगर लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो अभी करेंट मार्केट से दूर रहे, भाव नीचे आए फिर आप एंट्री करें। चलिए, तो इस खास पेशकश को यही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।